ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 11 ਦੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ NCERT 5.3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 2 ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ax² + bx + c = 0। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ a is not equal to 0। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a is not equal to 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ b² - 4ac ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ x² + x + 1 = 0। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए वो कितना आएगा b का स्केयर, इतने a भी 1 है, x² का कोफिशिएंट a 1 हो गया, x का कोफिशिएंट b वो भी 1 है, c जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो भी 1 है। सो b² - 4 × a × c अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करिए तो अपने को कितना आ जाता है -3। तो दी वैल्यू -3 आ गई विच इज लैस दैन 0। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਅਲਜਬਰਾ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ n ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ। n ਰੂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ, ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹੀ 10th ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, -b ± b² - 4ac ਵਾਲਾ। ठीक है, ऑलरेडी सुने 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b² - 4ac ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਮੀਨਸ 4ac ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b² ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ this is equal to -1 × 4ac - b²। ਤਾਂ -1 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ -1 ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਓਇਟਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ 4ac - b² ਦਿਸ ਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, x = -b ± ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b² - 4ac ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -3 upon 2 × a। तो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1 ± रूट ऑफ -3 ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ -a ਹੈ, a ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -1 × a। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, √1 × √a। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, √3 ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਓਇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿਓਰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x² + 3 = 0। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, x² = -3। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ±-3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਟਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ -3 ਓਇਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -√a ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, -a ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਵਨ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ a ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦਿਸ ਵਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਵਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਟਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ एग्जाम्पल हैगी है, ये सारे क्वेश्चन NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੋਣਗੇ A B C, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੋਣਗੇ A B C ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ b² - 4ac। ਸੋ b ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, a 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, a ਹੈਗਾ 2, b ਹੈਗਾ 1 ਤੇ c = 1 ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ b² - 4 × a × c। तो कितना आ गया 1 - 8 - 7 आ गया। जो आप इक्वेशन सोल्व करांगे तो ये सोल्यूशन कितना आएगा, x = -b ± √d इत्थे लिख लेने डिस्क्रिमिनेंट का 2a। तो -b कितना ये 1 ± √-7 अपॉन 2 × a कितना ये 2। सो ये आप ऑलरेडी जो फॉर्मूला उपर लिखा सी यही रिजल्ट बार बार अप्लाई करांगे। तो -1 ± √7 × ओइटा अपॉन 4। सो ये सोल्यूशन आ गया अपने को। इसनों प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच लिख दो, रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो। तो इस तरह की जी इक्वेशन होंदियां ने जिन्हां दा अपने को डिस्क्रिमिनेंट नैगेटिव आ जाता है, उन्हां दे सोल्यूशन होंदे ने, रूट्स होंदे ने, वो भी अपने को कंपलैक्स नंबर आते हैं। नैक्सट इक्वेशन हैगी आ √2x² + x + √2 = 0। इस दे विच अगर अपने को देखिए कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन नाल, a √2 है, b = 1 है, c = √2 है। सो डिस्क्रिमिनेट कर लो पहला, b² - 4ac इसकी वैल्यू कितनी है 1 का स्केयर -4 × a × c ते आ गया 1 - √2 × √2, 2 बन गया 2/4, 8 बन गया -7 आ गया। तो उस तो बाद आप की करांगे सोल्यूशन इसका किवें फाइंड करांगे, x = -b ± √d अपॉन 2a। तो -b कितना 1 ± √d कितना है -7 अपॉन 2 × a कितना है √2। तो ये अपने को इनू अगे सोल्व कर लेने, इनू अगे सोल्व करोगे ये आ जाएगा -1, इत्थे अपने को a की वैल्यू 2√2, ठीक है। तो -1 ± √7 × ओइटा अपॉन अपने को आ जाएगा 2√2। रियल तो इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक है। अगर तुम नीचों √2 हटाना चाहोगे, देखो ये दो आंसर हो सकते हैं। तुम इनू इस तरह भी लिख सकते हो, इत्थे अपने को रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, ये भी आंसर ठीक है। अगर थोड़ा होर मॉडिफाई करना हो तो इसमें आप लिख सकते हैं -1 ओइटा √7। तो √2 ना इनू मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी √2 ना मल्टीप्लाई करते, रैशनलाइजेशन करती। तो दिस इज -√2 ± √14, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई करता इतने अपने को √2 नो दोनों नाल मल्टीप्लाई कर दोगे। डिनोमीनेटर च कितना आ गया 2√2 × √2, √2 × √2 2 बन गया, 2/2 4 आ गया। इस फॉर्म च भी आंसर लिखा जा सकता है। दिस वन। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ये √3x² - √2x, ये भी जो कोफिशिएंट ने देखो सारे रियल रूट्स रियल कोफिशिएंट ने। तो a की वैल्यू हैगी √3, b की वैल्यू हैगी -√2, c की वैल्यू हैगी 3√3। सब तो पहला आप की करना होता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, दैट इज b² - 4ac -√2 का स्केयर -4 × a × c। तो दिस इज √2 का स्केयर अपने को 2 बन जाएगा, 4/3 12, 12/3 36। तो दिस इज -34 आ गया, लेस देन 0 आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू किमें फाइंड करते होंगे, फॉर्मूला सेम बार बार वही यूज होएगा, फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला अपने को जिहदे हेल्प नाल आपां इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं। -√2
प्लस माइनस रूट माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। इन इक्वेशन को किमें सोल्व करोगे, इतने आन गया माइनस, इतने ओल्टा रह गया, सॉरी ओल्टा अपने को बाद विच लगेगा। ये कितना बन गया प्लस 2 प्लस माइनस रूट 34। अगर माइनस हटाना हो तो अपने को ओल्टा बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। इनू स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच लिख दो। अगर तुसी इहदी रैशनलाइजेशन करनी है तो वह भी तुसी करके आंसर लिख सकते हो, जिवें लास्ट क्वेश्चन दे विच कीता सीगा। तो ये अपने को आंसर आ गया। नैक्सट क्वेश्चन है, ये अज के लैक्चर का अपने को लास्ट क्वेश्चन होएगा। तो इस दे विच की अपने को गिवन की है हेयर ए कितना है 1। अगर इनू थोड़ा जिहा सिंपलीफाई कर लीए, इनू रूट 2 नाल मल्टीप्लाई कर लीए तो आप लिखांगे रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1। इस दे नाल इक्वेशन थोड़ी जी सिंपल हो जाएगी, अपने को फ्रैक्शन जिहड़े है खत्म हो गए। तो फिर आप इत्थे की लिखांगे ए की वैल्यू कितनी है रूट 2, बी की वैल्यू कितनी है रूट 2, सी की वैल्यू कितनी है 1। अगर ये आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए बी स्केयर माइनस 4ac, दिस इज रूट 2 द स्केयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो दिस इज नथिंग बट रूट 2 आ जाएगा, स्केयर आ गया दिस वन। उस तो बाद आप की करना हुण, ये सोल्व करने वास्ते फॉर्मूला सेम बार बार वही अप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। बी कितना ये रूट 2 है, प्लस माइनस रूट ऑफ डी 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2a। ए कितना ये सॉरी इतने 2 लिखना सी, 2 रूट 2 बन गया। हुण इनू अगे किवें सोल्व कर सकते हो, जिन्होंने आप सोल्व करना है। देखो ये देखो वैसे तो आंसर इस तरह भी लिखा जा सकता है, इनू आप अलग अलग करके लिखांगे तो कितना आ गया माइनस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 प्लस माइनस इत्थे अपने को एक प्रॉब्लम हैगी आ, ये अपने को देखो ए वाला जो 2 हैगा, ये 2 हैगा इट इज़ लैस दैन 4 रूट 2, इस तो लैस वैल्यू हैगी है। आप ये पहला माइनस इनू आप लिखांगे ओल्टा बाहर कढ़ लांगे, तो इत्थे आप किवें लिखांगे 4 रूट 2 माइनस 2, ये ना ओल्टा बाहर आ गया। जिवें स्टार्टिंग दे विच ये चीज़ मैं दसी सीगी, अगर अपने को बी स्केयर माइनस 4ac इट इज़ लैस दैन 0 हुंदा है तो अपने को आपां नूं की करांगे माइनस बाहर कढ़ लिया करांगे। तो माइनस बाहर कढ़न तो बाद कितना बन जाएगा, जिवें एक क्वेश्चन दे विच सीगा, मैं इत्थे लिख देना साइड ते 2 माइनस 4 रूट 2 है। तो ये तुम लिखोगे माइनस 1 इंटू 4 रूट 2 माइनस 2, इस तरह लिख लिया। तो माइनस 1 का अपने को ओल्टा बन गया। सो ये वाला रिजल्ट आप इत्थे यूज किया है दिस वन। सैकेंड पार्ट की करोगे इस तो बाद, तो इत्थे अपने को जो डिवाइड करांगे ये कितना आएगा 4 रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2, इत्थे ओल्टा आ गया। ये आंसर भी ठीक है। जो थोड़ा होर चेंज कर दिए, देखो उपले वाले पार्ट के विचों अगर आप 2 कॉमन कर लीए तो कितना बन जाएगा, इत्थे रूट 2 नाल रूट 2 कैंसल ही हो गया, दिस इज 1 अपॉन 2 प्लस माइनस इस तो बाद ओल्टा, ये 4 रूट 2 दे विचों 2 कॉमन कर लिया। अगर 2 कॉमन कटोगे बाहर रूट 2 आएगा, अंदरले पार्ट दे विच कितना रहेगा 2 रूट 2 माइनस 1, 2 रूट 2 ना रूट 2 कैंसल हो गया। तो ये आंसर अपने को प्रॉपर फॉर्म दे विच आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लैक्चर। ये बहुत शॉर्ट जा लैक्चर सी, बहुत ईजी लैक्चर है, तो आई होप कि तुहानूं लैक्चर समझ आया होएगा। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सबसक्राइब द चैनल। थैंक यू।